Welcome students once again to Ujjwal's biology classes, and today we will be starting the third part of the chapter, your second chapter in biology, that is control and coordination. In the previous two parts we had already discussed about the structure of the neuron, the nerve fiber, what are the different types of nerve fibers are there, the set of passing of information like the impulse, what is an impulse, we had all details studied. Okay, and the parts of the neuron, how the receiving of the information is carried by the sensory neuron, how it is passed on to the CNS or the central nervous system, and how after interpretation of the information the carrying of the response to the effector organs through by the motor neurons. We had studied this and the pathway of the information. Today we will be seeing the parts of the nervous system, and we will be mainly dealing with the human nervous system. So here is a basic chart in which we will be studying about the parts of the human nervous system. So first starting with, there are actually three parts: the central nervous system, the peripheral nervous system, and the autonomic nervous system. CNS is actually the main controlling center of the human nervous system, and it contains the brain and the spinal cord. Further, when we will study in detailing, the brain consists of three parts, that is the forebrain, the midbrain, and the hindbrain. Clear? Today our topic will be to study and discuss thoroughly the concept of the brain. And then we will be moving into the peripheral nervous system. So this consists of two set of nerves, that is the cranial nerves which are arising from the brain, and the spinal nerves which are arising from the spinal cord. And furthermore, in detail we will be studying about the autonomic nervous system, which consists of the sympathetic nervous system as well as the parasympathetic nervous system. So actually if I tell, this central nervous system is, आपको याद रखना पड़ेगा, it is a dorsal, hollow and non-ganglionated central nervous system. Then we have the peripheral, which is formed of thread-like nerves consisting of the cranial and the spinal nerves. And finally we have the autonomic, which controls the involuntary functions of the visceral organs. So moving further, we will be today studying about the human brain. So first of all, we will be looking into that the position and the shape of the human brain. We generally know that the brain is situated inside the skull, inside the cranium or the cranial cavity. So human brain is a soft, is a whitish, pinkish, whitish, large and slightly flattened structure. Okay, so the shape of the brain is slightly flattened at the top. It is very soft in nature and it is of the whitish coloration, and it is a large organ. Next, it is present inside the cranial cavity. So this is your cranium of the skull, and this is also known as the brain box. It is also known as the brain box. So the cranial cavity undergoes, like the cavity over here has the brain inside. Next, the brain is also supported, or rather protected, by three meninges. Now what are these meninges? These are actually the layers of the cranium on the inner side which protects the brain. So the three meninges are, first of all, from outside. If I talk to the inside, first we will be having the dura mater. See, we have a cross section of the brain with the skull over here, a small portion. If I take this portion, this is zoomed into a larger cross section.
and this is the cerebral cortex, or we can say the foremost part of the brain. A small part of the brain has been shown over here. So the lining which forms a threefold. So this is your scalp, from where the hair follicles come out. This is your skull, the bone of the cranium, and here after the skull, inner to it, there is a thick outer fibrous layer, and this is your dura mater. There are two layers. You can learn the name periosteal and meningeal dura mater. Okay, so both of these consist of the dura mater, which is thick outer fibrous in nature. Next, we have the arachnoid membrane. So it is the middlemost layer, and it is thin and vascular. Why vascular? मतलब क्या है? यहाँ पर presence of blood vessels होते हैं, and therefore it is vascular in nature. So this is your arachnoid matter. And finally, we will be having the pia mater, which forms a membrane over the cerebral cortex or the brain. So it is the innermost layer, the thin and vascular in nature. So what are the three meninges? From outside, if I talk about the scalp and the skull consisting of the cranium bone, after that, the first layer of the first meninges will be dura mater, which is the outermost, thick, fibrous in nature. We have arachnoid, the middle, thin, vascular, and the pia mater, which is the inner, thin, vascular. So all these meninges are covered. They have cavities over here, which are also known as the meningeal cavity. So this meningeal cavity over here, actually, see the space which is covered over here, this is called the meningeal cavity, and here a fluid, alkaline based fluid, it is very transparent, it is alkaline in nature, and it is known as the cerebrospinal fluid. So the cerebrospinal fluid actually occupies the cavities between the meninges. So if I talk about the human brain, actually this will be protected by the meningeal membranes. What are the meningeal membranes? These three are the meningeal membranes. So the brain will be protected by the meningeal membranes, and from which it protects from the mechanical injuries. कोई भी अगर इंजरी होता है तो उससे बचाता है कौन? द मेनिंजियल मेम्ब्रेन्स. और अगर कोई मैकेनिकल शॉक लगा है तो उस शॉक से बचाएगा द CSF, that is the cerebrospinal fluid. Okay, moving on to the next, we will be studying about the structure of the brain. In the structure of the brain, we will be first learning about the parts of the brain. So the brain generally is consist of three parts. We have the forebrain, we have the midbrain, and we have the hindbrain. So let us have a closer look according to the picture. So this is your entire brain. So the largest part of the brain, which is your forebrain, and it consists of a large cerebrum, a thalamus, and hypothalamus, along with the pituitary gland. This is your actually the pituitary gland, which comes out of the hypothalamus. ठीक है? तो cerebrum, thalamus and hypothalamus मिला के बनता है आपका फोर ब्रेन. क्लियर? और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसी को हम लोग नाम देते हैं द सेरिब्रल cortex, and it is the cerebral cortex which is generally protected by the cerebral meninges and the cerebrospinal fluid. Then we have the midbrain, which is in purple colored. So this portion over here is your midbrain, and we will be studying about the parts of the midbrain also later. And we have the hindbrain, which consists of the pons, the medulla oblongata, and the cerebellum. इस cerebellum को हम लोग हिंदी में छोटा दिमाग भी बोलते हैं. ठीक है? तो जो हमारा फेस है, उस फेस के एंटीरियर साइड होता है ये पोर्शन, which will be having the eyes, the nose, everything, and the posterior portion will be having
the cerebellum, near the just above the neck region, or at the lower end of the skull. So forebrain, cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Hypothalamus extends to form the master of the endocrinal gland, that is the pituitary gland. Midbrain, actually it coordinates between the forebrain and the hindbrain, and hindbrain consists of the pons, the medulla oblongata, and the cerebellum. The medulla oblongata finally joins and runs through the vertebral column in the form of the spinal cord. Okay, so this is the structure of the brain. We will be now studying in detail the parts and the functions of each and every portion of the brain. So starting with the forebrain. Now see, forebrain actually it covers around 2/3 part of the entire brain. So if I talk about the brain, the forebrain contains, or it rather covers an area up to 2/3, and it is also known as the main thinking part of the brain. The main thinking part. Why? We will be seeing this. First of all, forebrain is again divided into three parts. The cerebrum, which is the largest of this forebrain, the olfactory lobes, and finally we have the diencephalon. Actually, diencephalon consists of the thalamus and the hypothalamus. So what are the three parts of the forebrain? It consists of the cerebrum, the olfactory lobes, and the diencephalon. Starting with the cerebrum, so it is the largest part of the brain. How much? What is its weight? It is around 80%, having the total weight of the brain. So the total weight of the brain, out of which 80% of the weight has your cerebrum. So it forms the largest part of the brain. Next, the longitudinal cerebral fissure. What is this? Now it is actually a longitudinal marking which divides or which run across the brain in longitudinal way or in a vertical way, which divides the brain into the left and the right cerebral hemispheres. So generally we will be having the two hemispheres, which is your left and the right. Okay, so see, this is a top view of the brain, and this is the longitudinal cerebral fissure, which I am telling, which is actually dividing the brain into the left side and the right cerebral hemispheres. So these are the two cerebral hemispheres in our brain. You can see that the cerebral cortex over here is highly folded. It is very highly folded like structure, and it forms two parts. The upper portion of the foldings, that is known as the ridges, and actually this ridges or the upper part is known as the gyri, and it has the grooves. जो गड्ढे लाइक आपके नजर आ रहा है, इनको हम लोग grooves बोलते हैं, और इस grooves को हम लोग नाम देंगे sulci. अगर सिंगल है तो sulcus, gyrus और sulcus, और अगर प्लूरल है तो gyri एंड sulci. क्लियर है? तो ये गायरी और सल्काई याद रखना है आपको. ग्रूव्स क्या है ना, जो ये गड्ढे है, जी फॉर ग्रूव्स, जी फॉर गड्ढे, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे सल्काई. और रिजेस, जो ऊपर की पोर्शन है आपके, जो ऊपर फुला हुआ पोर्शन है, उसको हम लोग नाम देंगे द रिजेस और द गायरी. नेक्स्ट वी हैव द पेरिफेरल पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर. अब ये ग्रे मैटर क्या चीज है ना? ग्रे मैटर अगर हम लोग बात करेंगे, इस ग्रे मैटर का मतलब है कि यहां पर आपके जो नॉन मीड्यूलेटेड नर्व फाइबर पाया जाता है. नॉन मीड्यूलेटेड मतलब जहां पर कोई भी माइलिन शीथ या मेड्यूलरी शीथ नहीं रहता है. क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ न्यूरिलेमा होगा. देयर विल बी नो मेड्यूलरी शीथ प्रेजेंस. देयर विल बी नो नोड्स ऑफ रैनवियर. कोई भी इंटर नोड नहीं रहेगा. ठीक है? उस पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं द ग्रे मैटर.
क्लियर है? तो ग्रे मैटर के अंदर क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो आप ये लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि ग्रे मैटर जो है वो कहां पर पाया मतलब कौन से टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स उसके अंदर पाया जाएगा? इट विल बी द नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, और इसी को ही हम लोग बोलेंगे द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो जो ऊपर वाला पोर्शन है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच विल बी फॉर्म्ड बाय द ग्रे मैटर। ठीक, और जो नर्व इंपल्स ले जाने का जो क्षमता है वो ट्रांसमिशन बहुत ही स्लो होता है किसमें? ग्रे मैटर के अंदर। ठीक, और अगर मैं सेंट्रल पार्ट की बात करूं, अंदर की पार्ट की बात करूं, तो वो अंदर पार्ट आपका होता है व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर आपको याद रखना है कि व्हाइट मैटर के अंदर आपका जो मेड्यूलरी शीथ है वो प्रेजेंट होता है। मतलब व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ mediulated nerve fibers, whereas gray matter consists of the non-medulated nerve fibers. तो non-medulated मतलब ही इसके अंदर medullary sheath नहीं होगा. White matter is medulated, therefore both neurilemma and the medullary sheath will be present. Also जो हम लोग nodes of Ranvier और फिर आपके इंटरनोड्स की बात कर रहे थे वो इस व्हाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब इसी सेंट्रल पार्ट को ही हम लोग नाम देंगे द सेरिब्रल मेड्यूला। क्लियर है? और यहां पर जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जाते हैं। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? अच्छा, लास्ट पार्ट हम लोग याद करेंगे कि ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो आपका लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, ये अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स बाय 3 डीप फिशर्स। और इस डीप फिशर्स को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा कि कौन से फिशर्स है और उसके नाम क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो ये 3D फिशर्स के नाम हो जाएगा। देखिए, एक तो लॉन्जिट्यूडिनल फिशर था जो हमें अच्छी तरह याद है, जो रेड में डिनोट कर रहा है। सो दिस इज योर लॉन्जिट्यूडिनल विच डिवाइड्स द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इनटू द लेफ्ट एंड द राइट। देन वी हैव द लैटरल हेमिस्फीयर, जो ग्रीन आपका पोर्शन में दिया हुआ है, द लैटरल फिशर। और ये लैटरल फिशर एक्चुअली जब हम लोग सेरिब्रम के अंदर जो 4 लोब्स है उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे जो टेम्पोरल लोब है उसको फ्रंटल और पैराइटल लोब में से अलग कर रहा है। कौन? द लैटरल फिशर। और जनरली आपका जो सल्कस है, दिस इज योर द सेंट्रल सल्कस, एंड द सेंट्रल सर्कस आपका सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब के साथ। क्लियर? तो आपके कितने आपके अलग अलग फिशर्स और सल्कस होंगे? 2 फिशर याद रखना पड़ेगा, एक तो लॉन्जिट्यूडिनल फिशर, एक आपका लैटरल फिशर। ठीक है? लैटरल फिशर का काम क्या है? फ्रंटल पैराइटल को टेम्पोरल से अलग करना। क्लियर है? तो दिस इज योर फ्रंटल, दिस इज पैराइटल, और ये जो टेम्पोरल है इसको अलग करना। ठीक है? ये देखिए, दिस इज योर टेम्पोरल लोब which separates, this is your lateral fissure which separates it from the आपका frontal and parietal. Clear है? Similarly, if I talk about the central sulcus, ये जो central sulcus है ये frontal lobe को parietal lobe से अलग कर रहा है। ठीक है? तो there are deep fissures which differentiated into 4 lobes. अब ये 4 lobes क्या है? चलिए देखते हैं। So the 4 lobes of the cerebral hemisphere कौन सा होगा ना? जो सेरिब्रम है उसको हम लोग 4 लोब के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका लोब है दिस इज योर द फ्रंटल लोब। और जनरली अगर मैं बात करूं इस फ्रंटल लोब के अंदर आपके जितने भी, दिस इज द एंटीरियर मोस्ट पोर्शन, इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जितने भी बॉडी पार्ट्स हो रहा है इस बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब। ठीक है? जितने भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है ऑफ द विसरल ऑर्गन्स का, जैसे मान लीजिए जैसे ही खाना आपके पेट के अंदर आया, स्टमक के अंदर आया, द वॉल्स ऑफ द स्टमक अंडरगोज अ मूवमेंट। जब खाना बोलस इज ट्रेवलिंग थ्रू द ईसोफिगस तब आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारे जो मूवमेंट है ये मूवमेंट करवाता है, दीज आर द इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, क्योंकि आपके हित में नहीं है, आपको पूछ के ये मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है? दे आर अंडर देयर ओन विल, सो दे आर कॉल्ड एज इनवॉलेंटरी फंक्शंस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय द फ्रंटल लोब। ठीक है? इसके अलावा
दीज आर एसोसिएटेड विद द रीजनिंग, विद द प्लानिंग। ये जो हम लोग जो भी थिंकिंग के काम करते हैं, ये सारे थिंकिंग, सेंसेशन, मूवमेंट, ठीक, इवन व्हाट वी स्पीक, द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, आवर इमोशंस, आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारा चीज जो है ये आपका कौन हेल्प करेगा, इसको कंट्रोल करेगा? द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द पैराइटल लोब। ये पैराइटल लोब को हम लोग मिडिल लोब भी बोल सकते हैं। और यहां पर जनरली जो आपके सेंसेशंस होते हैं, कैसे सेंसेशन? जैसे कि आप सोच सकते हो पेन, टच, टेम्परेचर, ये सारे जो है ये सारे सेंसेशंस को ये अच्छी तरह पकड़ या इंटरप्रेट कर सकता है। दिस इज योर पैराइटल लोब और द मिडिल लोब। ठीक, उसके बाद अगर मैं पोस्टीरियर पार्ट की बात करूं तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर हो जाएगा आपका ऑक्सीपिटल लोब। और ये ऑक्सीपिटल लोब के अंदर एक विजुअल एरिया है, और इस विजुअल एरिया में आपके ऑब्वियसली किसको कंट्रोल होगा? नाइट कंट्रोल्स द विजुअल सेंसेशन। जितने भी विजुअल सेंसेशन हमारे आंखों के द्वारा ऑप्टिक नर्व्स उसको लेके जाएगा, वो किस लोब पे जाएगा आपका? वो जाएगा ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। और फाइनली जो नीचे वाला हिस्सा है, द लैटरल पोर्शन, दोनों साइड में, नीचे ना बोल के हम लोग दो साइड की बात कर सकते हैं, और वहां पर रहेगा आपका टेम्पोरल लोब। तो एक इस साइड रहेगा, एक ऑपोजिट साइड रहेगा। और टेम्पोरल लोब को हम लोग लैटरल लोब भी बोल सकते हैं। यहां पर जनरली आपके टेस्ट एरिया होते हैं, ऑल्फैक्टरी एरिया होते हैं, और ऑडिटरी एरिया होता है। तो टेस्ट एरिया क्या करेगा? इट विल बी कंट्रोलिंग द टेस्ट, दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक, वो तो आपके सेंसेशंस होते हैं टेस्ट बड्स के अंदर, बट उसको पकड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो टेम्पोरल लोब के अंदर होगा। ठीक वैसे ही ऑल्फैक्टरी के अंदर स्मेल को सेंस करने के लिए आपका रहेगा, और ऑडिटरी के अंदर हियरिंग को कंट्रोल करने के लिए आपका रहेगा। ठीक है, तो टेम्पोरल लोब विल बी एसोसिएटेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी स्टिम्युलस, मेमोरी, स्पीच, उसके बाद आपके टेस्ट, स्मेल, ये सारा आपका टेम्पोरल लोब के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये चार लोब्स अलग अलग आपको अच्छी तरह ड्रॉ करना है, आपको समझना है, और इसके फंक्शंस बहुत अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग इनटू द फोर ब्रेन, एंड ओवर हियर वी विल बी सीइंग दैट द एरियाज ऑफ द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम अभी हम लोग पढ़ लिए थे और उसके फोर लोब्स की बात किए, उस एरियाज ऑफ द सेरिब्रम को हम लोग एक्चुअली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा द सेंसरी एरियाज। ऑब्वियसली सेंसरी से ही आपको पता चलता है कि लोब्स के अंदर जो आपके चार लोब्स की बात किए थे हम लोग, क्या क्या? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। इन सभी के अंदर आपके सेंसरी एरियाज होगा। ऑब्वियसली जो आपके सेंस ऑर्गन्स लेक इंपल्स कैरी करके भेजेगा वो कौन एक्सेप्ट करेगा? सेंसरी एरियाज। सो इट रिसीव्स द सेंसरी इंपल्सेस of sound, vision, smell, taste. Clear? Then we have the association areas, और ये एसोसिएशन एरियाज हो जाएगा आपका जहां पर ज्यादातर रिले न्यूरॉन्स का काम होगा, जहां पे ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आया वो सेंसरी इंफॉर्मेशन आर बीइंग इंटरप्रिटेड, और ये इंटरप्रेट होके एक रेस्पॉन्स क्रिएट होगा, जो रेस्पॉन्स ले जाने के लिए आपके काम करेगा द मोटर areas. So these motor areas will be generally involving in controlling the movement. कौन सा type of movement? किसका movement? Voluntary muscles. Okay, clear? So sensory areas आपका रिसीव करेगा सेंसरी इंपल्स, एसोसिएशन एरिया उसको इंटरप्रेट करेगा, और जो रेस्पॉन्स है वो भेजेगा और कंट्रोल करेगा वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट को। कौन? मोटर एरियाज। क्लियर है? सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात किए थे सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद आपका जो पार्ट है दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्लियर है? अभी तक हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में हम लोग ये चार लोब्स के अंदर नहीं पढ़े थे। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होगा वो जस्ट एट द एंड ऑफ द सेरिब्रम होता है। तो देखिए ये जो आपका एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर सेरिब्रम। सो दीज जस्ट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द
cerebrum there is a bulb like structure which is known as the olfactory lobes. ये भी पेयर में होते हैं, ठीक. So this is the anterior lowermost part of the cerebrum. एक पेयर में होगा small sized club shaped olfactory lobes, और जनरली ये क्या करेगा, it will be easily controlling the sense of smell. देखिए नेजल चेंबर है ये, और नेजल चेंबर से जितने भी आपके olfactory nerves जाता है वो इसी रीजन में जाता है, where the again the sensory association and the motor areas are there for controlling the sense of smell. So this is your olfactory lobes. तो फोर्थ ब्रेन के अंदर दो पार्ट हम लोग देख लिए. एक तो हो गया आपका द सेरिब्रम, फोर लोब्स के बारे में देखे हम लोग, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़े, और फाइनली वी विल बी हैविंग द ऑल्फैक्टरी लोब्स. इसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज योर द डायनसेफेलॉन. और ये डायनसेफेलॉन समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस पिक्चर को देखना है. ये जो डायनसेफेलॉन है दिस इज एक्चुअली द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस. और ये जो हाइपोथैलेमस है यही आपका एक्सटेंड करता है, बनाता है एक पी सीड शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज योर द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो डायनसेफेलॉन पढ़ेंगे हम लोग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is covered by the cerebrum and is formed of the thalamus. क्या है थैलेमस ना? एक्चुअली थैलेमस के अंदर बहुत ही मास ऑफ न्यूरॉन्स होते इकट्ठा, जो एक रिले सेंटर का काम करता है. रिले सेंटर मतलब जो एसोसिएशन सेंटर्स का काम करेगा. इट हेल्प्स टू कंडक्ट द इंपल्सेस ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर टू द सेरिब्रम. ये जो सेरिब्रम है इसके अंदर ये इंपल्स को कंडक्ट करते हुए लेके जाएगा. कौन सा? जो सेंसेशनरी आपके इंपल्सेस होंगे जैसे कि पेन, टच, टेम्परेचर. क्लियर है? तो ये सारा चीज आपका करेगा. और देखिए ये बहुत ही नियर बाई है टू जो हमारा मिडिल लोब था दैट इज द पैराइटल लोब. तो ये पैराइटल लोब के अंदर डायरेक्टली सेंसेशंस को कंडक्ट कर सकता है. जनरली वी हैव नेक्स्ट द हाइपोथैलेमस. ये भी हाइपोथैलेमस मेड अप ऑफ मास ऑफ न्यूरॉन्स which is just present below the below the thalamus. तो just thalamus के नीचे आपका हो जाएगा the hypothalamus. Hypothalamus का मेन काम आपको याद रखना पड़ेगा, it controls the involuntary functions. ठीक. और कैसे टाइप ऑफ इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है? जैसे कि थर्स्ट, जैसे कि हंगर, जैसे कि स्वेट, स्लीप, द वाटर बैलेंस, द ब्लड प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी. These involuntary functions are controlled by the hypothalamus. और ठीक hypothalamus extend होके बना लेता है एक pea seed shaped pituitary body या pituitary gland just at the base of the diencephalon. Clear है? This is your anterior pituitary and this is your posterior pituitary. बहुत अच्छी तरह डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एनिमल हॉर्मोन्स की बात करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का स्टडी हो और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ज्यादा नहीं बोला गया तो फिर काम नहीं चलेगा. सिंस पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी बॉडी इज नोन एज द मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्रिनल ग्लैंड्स. अच्छा देखिए आप यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कॉर्पस कैलोजम. ये कॉर्पस कैलोजम जो है ये एक मास ऑफ टिश्यू है जो एक्चुअली आप देखिएगा दिस इज योर द सेरिब्रम. तो ये सेरिब्रम अटैच होके रहता है एक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं द कॉर्पस कैलोजम. क्लियर है? सो कॉर्पस कैलोजम क्या करेगा ना? कॉर्पस कैलोजम ये जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है इन दोनों को इकट्ठा एक जगह रखेगा. कौन? द कॉर्पस कैलोजम. और ये कॉर्पस कैलोजम के नीचे ही डायनसेफेलॉन हो जाएगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के ऊपर. कोई दिक्कत है? सो दिस इज योर फोर ब्रेन. द फोर ब्रेन इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल बी मूविंग इनटू द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन जो होगा वो एक्चुअली एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का काम करेगा जो दो पार्ट से बना हुआ है. ठीक. देखिए आप, दिस इज द पोर्शन ऑफ द थैलेमस, दिस इज योर द हाइपोथैलेमस एंड दिस इज योर द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक. सो दिस इज द पोर्शन ऑफ योर द फोर ब्रेन. ये जो पोर्शन है एक यहां से आपका ट्यूब लाइक या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे आपका एक मास ऑफ या बैंड ऑफ नर्व्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिड ब्रेन.
सो मिड ब्रेन के अंदर, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस नीचे वाला पोर्शन को हम लोग नाम दे देंगे द हाइंड ब्रेन। तो देखिए ये जो रेड कलर में है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, द डायनसेफेलॉन। दिस द ब्लू पोर्शन एंड द ऑरेंज लाइक पोर्शन, ये आपका बना देता है द हाइंड ब्रेन। तो इन दोनों के बीच जो आपका ये मास ऑफ नर्व फाइबर्स है, द ग्रीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा आपका द मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन बनता है दो पार्ट से, एक हो जाएगा ऑप्टिक लोब्स। सो ये कैसा है ना, एक्चुअली देयर आर टू लार्ज साइड लोब्स ऑन द आइदर साइड। हर एक लोब्स के अंदर, ये पेयर में है तो एक लोब इधर और एक लोब इधर, हर एक लोब के अंदर आपके अलग अलग करके डिवीजन होता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो देयर आर 4 आपके ऑप्टिक लोब्स टोटल इन द नंबर। क्लियर? ये क्या करता है ना, दिस ऑप्टिक लोब्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द हेड, इन द आईज, किसके रेस्पॉन्स पे ना, विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के ऊपर बेस करके। देखिए जैसे ही हमारे चारों तरफ से कोई आवाज आता है, हमारा तुरंत जो हेड है और जो हमारा कान है उस साइड घूम जाता है। क्लियर? बिकॉज क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है ये मूव नहीं कर सकता है खुद ब खुद, तो ऑब्वियसली द एंटायर हेड को मूव करना पड़ता है टू रिसीव द साउंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। तो ये जो मूवमेंट ऑफ द ट्रंक है, ये मूवमेंट ऑफ द हेड है। क्लियर? द आईज, तो इसी को ही काम करता है, ये आपकी मूवमेंट ही काम करवाता है कौन, द ऑप्टिक लोब्स। क्लियर है? विच इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। एंड फाइनली वी हैव द सेरिब्रल पेडंकल्स। ये एक्चुअली पेयर ऑफ बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स है जो कोऑर्डिनेट करता है द बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन का काम करवाता है कौन, द सेरिब्रल पेडंकल्स। इसका और ज्यादा काम नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज योर मिड ब्रेन। एंड फाइनली वी विल बी मूविंग इनटू द हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन जो है, इसके अंदर 3 पार्ट्स है। अभी हम लोग देखे थे इन द प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड दैट दिस वाज योर हाइंड ब्रेन। सो इस हाइंड ब्रेन के अंदर आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड दिस वाज योर द 3rd पार्ट। तो हाइंड ब्रेन के अंदर जो 3 पार्ट्स है, यहां पर भी सेम पिक्चर है, देखिए द सेरिबेलम। ठीक है? जैसे ही आपका द सेरिब्रम विल बी द लार्जेस्ट, इसके जस्ट नीचे दोनों तरफ आपका हो जाएगा द सेरिबेलम। क्लियर? सो इट इज अ लार्ज साइज लोब विच इज प्रेजेंट बिलो द ऑक्सीपिटल लोब्स ऑफ द सेरिब्रम। ये ऑक्सीपिटल लोब्स थे, तो ऑक्सीपिटल लोब्स के जस्ट नीचे हो जाएगा आपका ये अ लार्ज साइज लोब, दैट इज द सेरिबेलम। ये क्या करेगा, बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार एनटीएससी के अंदर पूछा गया है कि दिस कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम एंड द बॉडी पोस्चर। ये जो हम लोग सीधा जा सकते हैं, हम लोग अपना बॉडी बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द आपका सेरिबेलम। और क्या करेगा ना, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वॉलेंटरी फंक्शंस है या वॉलेंटरी मूवमेंट्स है, उसको भी कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम। क्लियर? वी हैव द पॉन्स, सामने की तरफ हो जाएगा, एंटीरियर पोर्शन में हो जाएगा पॉन्स, जस्ट आपका डायनसेफेलॉन के नीचे। सो इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द, अगेन सेम जैसे जो मिड ब्रेन का काम था, वही सेम काम रहेगा आपका पॉन्स का। तो पॉन्स कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम। एक काम तो ये है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमारा जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो मसल्स है, उस मसल्स के बीच कोऑर्डिनेशन करके काम करवाना, ये काम रहता है पॉन्स का। क्लियर? सो पॉन्स ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द मसल्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द बॉडी। एंड फाइनली वी हैव द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, दैट इज द पोस्टीरियर मोस्ट ऑफ द एंटायर ब्रेन, जो धीरे से कंटिन्यू होके ज्वाइन करेगा टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या करेगा, इसके बहुत सारे काम रहता है, दैट इज मेनली इट इज इन्वॉल्व्ड इन द इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। जैसे कि इसके अंदर काफी सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, ताकि जो हमारा कफिंग है, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यूरिनेटिंग, डिफिकेशन, जो हम लोग फीकल मैटर को निकालते हैं, ब्लड प्रेशर, इवन स्वेलोइंग ऑफ फूड, द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये सारा कुछ आपका काम करता है कौन, द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। क्लियर है? ठीक। तो जनरली काफी सारे आपके रिफ्लेक्स सेंटर्स यहां पे होते हैं, जैसे कि कार्डियक सेंटर्स है,
जो हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकता है, सलाइवरी सिक्रीशन सेंटर्स है जो सलाइवा का सिक्रीशन को कंट्रोल कर सकता है. सो दिस मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर ब्रेन. ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ब्रेन अच्छी तरह समझ में आया. ठीक, आपको मैं नोट्स जो चीज चाहिए, आप तो एक तो जहां जहां मैंने स्लाइड को रोक रोक के आप अपना नोट्स बना लेना. जो चीज मैंने जस्ट बोल दिया बट यहां पर लिखा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उसका नोट आपको अलग से मिल जाएगा. क्लियर? कल हम लोग यहां अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सीएनएस, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, and then we'll be moving into the peripheral nervous system and finally the autonomic nervous system. Clear? So till then, study well. Thank you.